મિત્રો થોડા દિવસ પહેલા જ મેં એક 18 મહિનાની ભારતીય છોકરી જે જર્મનીમાં જર્મન ચાઇલ્ડ સર્વિસીસની કસ્ટડીમાં છે તેના વિશે એક સ્ટોરી અપલોડ કરી હતી. તે જ ઘટનામાં આગળના ઘટનાક્રમમાં અરીહાના માતા પિતા ગઈકાલે સોશિયલ મીડિયા પર થોડા કલાક પહેલા જ લાઈવ થયા હતા, જેમાં તેમણે 3 ઘણી જ મહત્વની વાતો શેર કરી હતી, જે હું તમારી સાથે શેર કરવા માંગીશ. ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં અરીહાની માતાએ કીધું છે કે ગયા મહિનાની 21મી સપ્ટેમ્બરે જર્મન કોર્ટે એક ઓર્ડર પાસ કર્યો હતો. તેમાં કીધું હતું કે જર્મન ચાઇલ્ડ સર્વિસીસ હવે પછી અરીહાની તેના માતા પિતા સાથેની વિઝિટમાં વધારો કરી આપે. પણ 21મી સપ્ટેમ્બર અને ગઈકાલે 4મી ઓક્ટોબર આ બંને વચ્ચે 13 દિવસ વીતી ગયા હોવા છતાં પણ જર્મન ચાઇલ્ડ સર્વિસીસે હજી સુધી એક પણ વખત અરીહાને તેના માતા પિતા સાથે મળાવી નથી. જ્યારે અરીહાના માતા પિતાએ આ વિશે જાણવાની કોશિશ કરી ત્યારે જર્મન ચાઇલ્ડ સર્વિસીસે એવું કીધું કે આવતા મહિના એટલે કે નવેમ્બર મહિનામાં તેઓ એક મીટિંગ કરશે અને ત્યાર પછી નક્કી કરશે કે આગળ શું કરી શકાય. અરીહાના માતા ધારાબેન પ્રમાણે આ ક્લિયર અનજસ્ટિસ છે, કારણ કે આ પહેલા જ્યારે અરીહાના માતા પિતા સાથેની વિઝિટ 1 વીકમાંથી 1 મંથ કરવાની હતી ત્યારે જર્મન ચાઇલ્ડ સર્વિસીસે ક્લિયર આનો અમલ કર્યો હતો. પરંતુ આ વખતે જ્યારે જર્મન કોર્ટે જે આદેશ જાહેર કર્યો છે તે જર્મન ચાઇલ્ડ સર્વિસીસ ફોલો નથી કરી રહ્યું. સેકન્ડ પોઈન્ટ, અરીહાની માતાએ અરીહાને ભારતમાં પાછી લાવવા માટે ઇન્ડિયન એમ્બેસીમાં ફરીથી રિક્વેસ્ટ કરી. ત્યારે ઇન્ડિયન એમ્બેસીએ તેમને જણાવ્યું કે તેઓ લીગલ પ્રોસિજર્સ ફોલો કરે. પણ ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં જે રીતે અરીહાની માતાએ કીધું કે જર્મન કોર્ટના હુકમને જર્મન ચાઇલ્ડ સર્વિસીસ જ ફોલો નથી કરી રહી. થર્ડ પોઈન્ટમાં અરીહાના ફાધર ભાવેશભાઈએ વિડીયોમાં કીધું છે કે 10 મહિનાનો સમય વીતી ગયો હોવા છતાં પણ માત્ર 10 કલાકથી પણ ઓછા સમયનું साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन કરવામાં આવ્યું છે. इन लोग ने साइकोलॉजिकल असेसमेंट करने को बोला, उसे 10 महीना लग रहा है और 10 महीने से उन्होंने हमारे साथ खाली 10 घंटे बातें की. कोई एक साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन को इतना समय कैसे लग सकता है? अगर उनको वही साइकोलॉजिकल असेसमेंट कंप्लीट करके अगर कुछ बातें करनी हो तो वो 10 घंटे बात करने के लिए उन्होंने 10 महीने लगाए. ये लोग जानबूझ के जो है वो समय खींचा जा रहा है और वो समय के बाद अभी लोग ये चीज बोल रहे हैं कि लाइक अभी बच्चे ज्यादा करके जर्मन कल्चर में रहा है, इसके लिए उसको जर्मन कल्चर से इंडियन कल्चर में मूव करना उचित नहीं है. ये चीज तो बहुत गलत है. हमने तो समय नहीं लगाया, हमने तो नहीं बोला कि आप 10 घंटे मीटिंग के लिए 10 महीने लगाओ. तो इसे इतना समय क्यों लगाया जा रहा है? मैं चाहता हूँ कि सब हमें सपोर्ट करे और भारत सरकार तक हमारी बात पहुंचे. આના પરથી જર્મન ચાઇલ્ડ સર્વિસીસનું ઇન્ટેન્શન ક્લિયર દેખાઈ રહ્યું છે કે અરીહાને તેઓ તેના એક્સટેન્ડેડ ફેમિલી અથવા તેના માતા પિતા સુધી અથવા ભારતના કોઈ પણ ફેમિલી સુધી અરીહાને કોઈ પણ સંજોગોમાં ભવિષ્યમાં આપશે નહીં. મિત્રો, અરીહા એક ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ હોલ્ડર છે. આપણે સૌએ ભેગા મળીને અરીહાને ભારતમાં તેના એક્સટેન્ડેડ ફેમિલી સુધી પહોંચાડવા માટે એક સાથે અવાજ ઉઠાવવો પડશે. મિત્રો, આ વિડીયોને વોટ્સઅપ, ફેસબુક, ટ્વિટર પર વધારેમાં વધારે શેર કરો. આપણી કદાચ થોડીક મિનિટો અરીહાને તેના એક્સટેન્ડેડ ફેમિલી સુધી પહોંચાડવામાં હેલ્પ થઈ શકે છે. ટ્વિટર પર ફોરેન મિનિસ્ટ્રી, એક્સટર્નલ અફેર્સ મિનિસ્ટ્રી, ઓફિસર્સ, ડિપ્લોમેટ્સ જેમને પણ તમે ટેગ કરી શકો તેમને ટેગ કરીને રિક્વેસ્ટ કરો કે અરીહાને ભારતમાં પાછી લાવવા માટેની પ્રક્રિયામાં તેઓ ઇન્ટરવીન કરે અને તેમની હેલ્પ કરે. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં ટ્વિટરની એક ટ્વીટ મેં શેર કરી છે, તેને વધુમાં વધુ રિટ્વીટ કરો, રિક્વોટ કરો અને change.org ની એક લિંક પણ શેર કરી છે. વધુમાં વધુ પિટિશન સાઇન કરો અને તેને શેર કરો. नमस्कार, मैं धारा शाह, मदर ऑफ अरीहा शाह. आज 4 अक्टूबर 2022 है और यहाँ पे बर्लिन में दोपहर के 2 बजे और इंडिया में शाम के 5:30 बजे. मैं आज वापस इंडियन एम्बेसी पे आई हूँ ये बोर्ड लेके. बोर्ड पे शायद क्लियरली मिरर इमेज के सामने नहीं दिखेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी. इस पे लिखा है सेंड अरीहा टू इंडिया. मैं आज आपको ये क्लियरली दिखाने आई हूँ कि 1 साल से हम लोग जो जर्मनी में सरकार के सामने लड़ रहे हैं हमारी बच्ची की कस्टडी हमारे पास वापस लाने के लिए, और हमको जो फेयर चांस नहीं मिल रहा है, बहुत इनजस्टिस है सिस्टम में, हमको फेयर चांस नहीं मिल रहा है. उसका एक और उदाहरण आपको देने आई हूँ. जब भी हम यहाँ पे आते हैं एम्बेसी में और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इंटरवीन कीजिए, तो हमको हमेशा बोला जाता है कि इसका एक लीगल सॉल्यूशन ही है, आप प्लीज़ लीगल वे से जाइए. और हम लोग ने रिक्वेस्ट ऑलरेडी बहुत बार की कि इसका कोई लीगल सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज सिस्टम फेयरली चांस नहीं देता है पेरेंट्स को. और पहले जो अमेरिका और नॉर्वे में भी जो केसेस हुए उसमें भी भारतीय सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल यूज़ किए हैं. लीगल
वे क्यों नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देने जा रही हूँ। हमने बहुत बार सब, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि पहले भी सोशल वर्कर्स ने, फॉस्टर मदर जिनके पास अरिहा है, अरिहा को जो लॉयर दिया गया है, वो सब ने एक पॉजिटिव रिपोर्ट दिए हैं कि बच्ची को माँ बाप से बहुत अच्छे से मिलती है, सब जगह से पॉजिटिव रिपोर्ट्स है। ये सब देख के हम कोर्ट में वापस गए थे कि हमारी विजिटेशन बढ़ाई जाए। हमने वापस कोर्ट में ये सब जाके लीगल वे से सब ट्राई कर रहे थे। फाइनली 21 सितंबर को कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पेरेंट्स के साथ बच्चे की मीटिंग बढ़ाई जाए। 21 सितंबर, आज 10-12 दिन हो गए। हमने जब सोशल वर्कर से कांटेक्ट किया कि मीटिंग बढ़ाने का ऑर्डर इतना टाइम से आ गया है, तो आपने अभी तक क्यों मीटिंग नहीं बढ़ाई है, हमको क्यों नहीं बोला गया है, कब मिलेंगे, कुछ अपडेट नहीं है। तो पहले उन्होंने पिछले हफ्ते ये जवाब दिया कि हमको तो ऑर्डर ही नहीं आया है। हमने हमारे वकील से कह के उनको भी ऑर्डर भिजवाया। फिर वापस हमने आज फॉलोअप किया। तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू ऑर्डर आज मुझे अपनी बेटी से मिलने जाना था हम लोगों को, पर सिस्टम ऑर्डर फॉलो नहीं करती है। जर्मन कोर्ट का ऑर्डर जो है, बच्ची की विजिटेशन माँ बाप से बढ़ाई जाए, बच्ची को माँ बाप से ज़्यादा मिलाया जाए, वो जर्मन कोर्ट का ऑर्डर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज फॉलो नहीं कर रही। हमको आज ये बताया गया कि नवंबर में आपसे मीटिंग करेंगे, फिर बातचीत होगी, फिर देखेंगे कैसे क्या करना है। जब विजिटेशन कम करने का ऑर्डर आया था एवरी वीक से एवरी मंथ, तो उसको तो तुरंत ही इम्प्लीमेंट कर दिया। ओके, कोर्ट का ऑर्डर है, जर्मन चाइल्ड सर्विसेज इसको फॉलो करेगी, इसलिए उन्होंने तुरंत कम कर दिया। आज जब कोर्ट का ऑर्डर है मीटिंग बढ़ाया जाए, तो उसका जर्मन चाइल्ड सर्विसेज क्यों नहीं फॉलो कर रही है तुरंत? कोर्ट का ऑर्डर है, फिर तो बातचीत की कोई जगह नहीं होती। कोर्ट का ऑर्डर तो फॉलो ही करना होता है, लीगल प्रोसीजर होता है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो ये करना है। आज ये चाइल्ड सर्विसेज कोर्ट के ऑर्डर पर हमारी मीटिंग भी नहीं बढ़ा रही है, तो कोर्ट के ऑर्डर पर हम कैसे बैठे कि वो बच्ची दे देंगे और चाइल्ड सर्विसेज फॉलो करेंगी? ये अब जीता जागता उदाहरण है कि सिस्टम कैसे हमें फेयर चांस नहीं दे रही है। कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ जा रहा है और हमें बताया जाता है कि आप लीगल वे से ट्राई कीजिए। लीगल वे से तो हम ट्राई कर ही रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि लीगल सॉल्यूशन है, लीगल सॉल्यूशन कहाँ है? कोर्ट का ऑर्डर अगर कोई नहीं मान रहा तो वहाँ का लीगल सॉल्यूशन कैसे माना जाएगा, आप बताइए। इतना अनफेयर सिस्टम। कोर्ट ने अभी हमको बोला कि आपको गुजराती ट्रांसलेटर चाहिए, आप कोई नहीं लेके जा सकते नेक्स्ट टाइम, ठीक है? ओके, अच्छी बात है। फाइनली उन लोगों ने समझा कि ये सारे डिस्कशन में कितना ज़रूरी है। पर अभी तक का तो सारा प्रोसेस उन्होंने उर्दू स्पीकिंग ट्रांसलेटर के साथ किया है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो किया है वो उनके साथ किया है, तो वो कैसे सही हो सकता है? मतलब हमारे वहाँ पे तो हम बोलते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर होगा, कोर्ट आपको न्याय देगी, आप वहाँ पे बात कीजिए, कोर्ट में जाइए, लॉयर को बोलिए। हमने लॉयर को बोला, हमने कोर्ट में बोला, कोर्ट ने हमारी बात सुन के विजिटेशन बढ़ाने का ऑर्डर दिया। 21 सितंबर को कोर्ट ने ऑर्डर दिया है विजिटेशन माँ बाप के साथ बच्ची का बढ़ाया जाए। आज 4 अक्टूबर है, विजिटेशन तो बढ़ाया नहीं गया। हमको कोई रिवर्ट नहीं। हम जब पीछे पड़े कि आप कब मिलना है, तो बोला जाता है आपसे अगले महीने नवंबर में मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, फिर देखेंगे। बातचीत तो कोर्ट में हो गई, इसीलिए तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तो अभी इस बारे में हमसे क्या बात करनी है? जब कोर्ट ने विजिटेशन कम करने का ऑर्डर दिया था तब तो आपने तुरंत कर दिया, क्यों? मतलब मेरे ख्याल से सब यहाँ पे जो भी है, हमारे सब भारतवासी, सब पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग बहुत समझदार हैं।
आप ही मुझे जवाब दीजिए। विजिटेशन घटाने का ऑर्डर फॉलो किया जाता है, बढ़ाने का नहीं। तो रीज़न क्या है? हमको जर्मनी में अभी बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है हमारा ये कैंपेन के बारे में कि बच्ची को इंडिया भेजा जाए। बहुत सारे लोकल जर्मन से हमको कांटेक्ट किया है, लोकल्स ने, और उन लोगों ने जो सिस्टम जानते हैं। बहुत सारे लोगों की यही क्वेश्चन था कि ठीक है, पेरेंट्स के लिए जो प्रोसेस है वो ठीक है, पुलिस केस बंद हो गया फिर भी प्रोसेस क्यों चल रही है वो तो सबको क्वेश्चन है, फिर भी प्रोसेस चल रहा है। तो जब यहाँ पे बच्ची को जर्मन परिवार में क्यों रखा जा रहा है? ये बच्ची का राइट्स है कि उसको इंडियन कल्चर में रखा जाए, इंडियन संस्कृति में, इंडियन लैंग्वेज में, इंडियन फूड में। तो बच्ची के राइट्स क्यों फॉलो नहीं किए जा रहे? बच्ची को उसका हक क्यों नहीं दिया जा रहा? लोगों को सवाल है कि पेरेंट्स तो पीछे है कि बच्ची को नॉनवेज ना दिया जाए, बच्ची का धर्म रखा जाए। पेरेंट्स को तो बच्ची की नहीं, उसके धर्म की, उसको नॉनवेज ना देने की ज़्यादा फिक्र है। तो आपको बता दूं, अभी जर्मन चाइल्ड सर्विसेज यही चीज़ का यूज़ कर रही है। बच्ची तो अब जर्मन फूड से यूज टू हो गई है, वो जर्मन भाषा बोलती है, जर्मन कल्चर में रह रही है 1 साल से, तो उसको अभी जर्मन कल्चर से इंडियन कल्चर में कैसे डाला जा सकता है? मतलब जब हम बच्चे के लिए ये सब बोल रहे हैं तो ठीक है, तो लोगों को गलत लगता है, बहुत लोगों को, बहुत नहीं, कुछ लोगों को, सॉरी मिठा में लिखो। और यही चीज़ अभी चाइल्ड सर्विसेज यूज़ कर दी है कि नहीं, बच्ची को क्यों रखा जाता है, उसको अभी जर्मन फूड की आदत है, जर्मन लैंग्वेज की आदत है, उसको आपकी बातें नहीं समझेगी, आपके कल्चर में नहीं समझेगी। यही बातें तो अब वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये कहा कि इंसाफी है। पेरेंट्स को ओके, पेरेंट्स को साइड में रखो, मम को साइड में रखो। बच्ची तो इनोसेंट है, बच्ची के राइट्स तो प्रिजर्व कीजिए। मतलब चाइल्ड सर्विसेज क्या कहना चाहते हैं कि कोई इंडियन फैमिली बच्ची के देखभाल करने के लिए काबिल नहीं है। मतलब ये, क्योंकि यहाँ से तो बहुत सारे जैन फैमिली, गुजराती फैमिली, इंडियन फैमिली बहुत महीनों से दे दिया कि हम बच्ची को रख सकते हैं, हम बच्ची को रख सकते हैं, हम बच्ची के राइट्स प्रिजर्व करने में हेल्प कर सकते हैं। जर्मन इंडोलॉजिस्ट जिन्होंने जैनिज्म पे पीएचडी की है, बहुत सारे लोग हैं जर्मन लोग जिन्होंने इंडिया के कल्चर के बारे में पढ़ा है, सुना है, और वो खुद जर्मन लोग इंडियन कल्चर से बहुत प्रभावित हुए कि इंडिया में जो संस्कृति है, वो कल्चर वो खुद अपनाते हैं, वो फॉलो करते हैं। उनको आज दर्द हो रहा है कि इंडिया में जब इतना बड़ा परिवार होता है, यहाँ पे तो उनको वो सब नहीं मिलता है, तो बच्ची को क्यों अनाथों के जैसे रखा जाता है। एक जर्मन लेडी का मुझे कॉल आया कि मैंने देखा क्या है, लीगल जो भी हो, पर बच्चे को उसके रूट्स से, उसके इंडियन कल्चर, इंडियन रूट से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके घर में एक उसके फ्रेंड है या कोई है जो अडॉप्टेड है। वो आज भी, मतलब वो बहुत पेन में जी रहा है कि बच्चे, उनको खुद के रूट्स नहीं पता है, वो कहाँ से आए नहीं पता है, उसकी फैमिली नहीं पता, वो अभी भी ढूंढते हैं। बोले बच्ची को इस तरह से पूरा अपने कल्चर, अपने इंडियन लोगों से एलिनेट नहीं करना चाहिए। बच्ची को उसके कल्चर में रखना चाहिए, बच्ची को वेज फूड देना चाहिए, उसकी वो बच्ची के राइट्स है, बच्ची के राइट्स प्रिजर्व करने चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। लीगल सॉल्यूशन पे आते हैं वापस। एक तो उदाहरण दे दिया कि लीगल कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जाता, वहाँ के लीगल सॉल्यूशन पे कैसे होगा ये मुझे समझ में नहीं आता, आप प्लीज़ बताइए। दूसरा, ओके लीगल पे आते, लॉ पे बात करते, डॉक्यूमेंट पे। अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स, बच्ची कौन सा लैंग्वेज बोलेगी, कौन सा फूड खाएगी, कौन सा कल्चर फॉलो करेगी, सब राइट्स तो पेरेंट्स के पास है। तो जब पेरेंट्स बोलते हैं कि नॉनवेज ना दिया जाए, नहीं सुनने में आता। जब पेरेंट्स बोलते हैं आप उसको चर्च में नहीं मंदिर में लेके जाइए ताकि बच्ची अपने इंडियन कल्चर को समझे, तो पेरेंट्स को बोला जाता है नहीं बच्ची मंदिर नहीं जाएगी, बच्ची तो चर्च में जाएगी। जब पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं आप उसको उसकी भाषा सिखाइए, इंडियन फैमिली जाएगी, उनसे प्ले डेट्स पे खेलने के लिए मिलेगी, उसको भाषा सिखाएगी, तो बोलते हैं नहीं वो तो आपकी आइडेंटिटी है, बच्चे की कोई आइडेंटिटी नहीं है इंडियन। बच्चा तो अभी जर्मन में बड़ा हो रहा है, तो जो जिसमें बड़ा होगा वो उसकी आइडेंटिटी बनेगी। बच्ची
का ये सारे लॉ पे राइट्स है, लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ जो हमारे राइट्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, लॉ का कोर्ट ऑर्डर है, वो लोग सब ऐसे उसको बोले ना, कुछ मतलब ही नहीं है उसका सिस्टम का। और हमें बोला जाता है आप लीगल सोल्यूशन लाए। ऐसे मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत सारे इंडियन फैमिलीज, जी हाँ, इंडियन फैमिलीज से कांटेक्ट हुआ है, दूसरी और ईस्टर्न यूरोपियन बहुत सारी फैमिलीज से कांटेक्ट हुआ है जिनके बच्चे ऐसे ले लिए गए हैं। और बहुत सारी सरकार ने अपने बच्चों की, अपने सिटीजन की राइट्स प्रिजर्व करने के लिए ऑलरेडी जर्मन सरकार से बातचीत शुरू कर दी है। कोई सरकार तो इसमें कामयाब भी हो चुकी है। तो हम भी यही उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वो सब समझ गए हैं कि ये सिस्टम ही अनफेयर है। तो बच्ची को ये सिस्टम से बचाने के लिए, बच्ची को उसका हक दिलाने के लिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं हमारी भारतीय सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्लीज आप बच्ची के लिए बोलिए, बच्ची के राइट्स प्रिजर्व कीजिए। बच्ची कहाँ है, किस हालत में, देखिए। हम तो आजाद घूम रहे हैं, बच्ची अभी कैद में है। क्यों? कुछ लोग मानते हैं पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स की गलती नहीं है, ठीक है, पर ये तो सब मानते हैं कि बच्चे की गलती नहीं है। बच्चे ने कोई कसूर नहीं किया है, बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्ची बेचारी भुगत रही है। आई एम श्योर ये तो 100% पब्लिक सब मान रहे होंगे। तो आप जिस बच्ची के लिए सोच रहे हैं कि पेरेंट्स का चलो गलती है कि नहीं है, वो तो लीगल वे पे जाएंगे, डिसाइड करेंगे। बच्ची के लिए आप सोचो तो आप एटलीस्ट ये तो देखिए कि बच्ची ठीक हालत में है कि नहीं, वहाँ पे कैसे रखा जाए, कौन से हाल में रखा जाए, उसके राइट्स प्रिजर्व हो रहे हैं कि नहीं, उसको जहाँ पे रखा है वो सिस्टम कैसी है। सारी जनरेशन अब तो हम गूगल पे है, सब गूगल पे मिल जाता है। थोड़ा रिसर्च कीजिए, कितने बच्चों को ऐसा लिया जाता है, उनका क्या किया जाता है, उनको लेने के पीछे का मकसद क्या है, गूगल कीजिए, सब गूगल पे अवेलेबल है। हमको अब अगर दूसरे देशों के लोग, दूसरी देशों की सरकार कर सकती है, हमको हमारे देश की सरकार पर पूरा भरोसा है, सशक्त भारतीय सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो बच्ची को, जैसे पहला भी लाए हैं, नॉर्वे, यूएस से सब बच्चों को बचा के लाए हैं, अरिहा को भी बचा के इंडिया लेके जा सकते हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बच्ची को लेके जाइए, यहाँ से बच्ची को बचाइए। हम हमारे लिए कुछ नहीं मांग रहे, मैं वापस बोलती हूँ, पेरेंट्स, अरिहा के पेरेंट्स किसी के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं मांग रहे। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, बच्ची को हेल्प की जाए, बच्ची को बचाया जाए, बच्ची को इंडिया में रिपाट्रिएट किया जाए, क्योंकि यहाँ का जो कोर्ट का ऑर्डर भी सिस्टम फॉलो नहीं कर रही है। तो हम ये सिस्टम पे कैसे रहे, आप बताइए। मोदी जी ने तो इतने सारे काम किए कि वो चाहे तो घंटों में कितने लोगों को, कितने बच्चों को इंडिया लेके आए हैं, युद्ध हो कि कोई भी कंडीशन हो। हमको पूरा यकीन है उन तक अगर बात पहुंचेगी तो ये बोलो ना, चाय पे चर्चा पे हो पाएगा ये। आज सरकार चाहेगी तो हमको पूरा भरोसा है कि वो कर सकती है। अटका कहाँ है मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक एक मिनट हम बच्ची को देखने के लिए तरसते, एक एक सेकंड कैसे निकालते हमको पता है। लोगों के लिए होगा कि 1 दिन का टाइम दो, 2 दिन का टाइम दो, 24 घंटे, 48 घंटे। आपके लिए दिन घंटे, हमारे लिए एक एक सेकंड, एक एक जन्म है। 1 साल से हम लोग फाइट कर रहे हो, हम लोग फाइट करेंगे। जिनको जो भी सोचा हम गलत नहीं है, इसीलिए आज आपके सामने है। गलत होते तो मुंह छुपा के बैठे होते। हम सही है
तो हम फाइट करेंगे। हम हमारी बच्ची को बचाने के लिए फाइट करेंगे। मैं ऐसे सोलो प्रोटेस्ट वगैरह करती रहूँगी जब तक मेरी बच्ची इंडिया नहीं पहुँचती। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी प्रोटेस्ट कीजिए, आप भी सरकार तक हमारी बात पहुंचाइए कि अरिहा एक मासूम सी बच्ची जो 12 महीने से जर्मन चाइल्ड सर्विसेज की कस्टडी में है, उसको वहाँ से छुड़ा के, वहाँ से बचा के उसके देश इंडिया में लेके आए। प्लीज़ ये आज मैं यहाँ पे इंडियन एम्बेसी पे आने का, आप सबसे लाए होने का ये कारण यही था कि देखिए कितना अनफेयर सिस्टम है। जो सिस्टम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, वहाँ पे हम लीगल सॉल्यूशन कैसे लाएंगे? कोर्ट का ऑर्डर अगर फॉलो नहीं किया जाता तो वहाँ पे लीगल सॉल्यूशन कैसे आएगा? हमारी आप सबसे विनती है, प्लीज़ भारतीय सरकार तक बात पहुंचाइए कि जैसे उन्होंने नॉर्वे और यूएस के सारे केसेस में भारतीय बच्चों को बचाने के लिए, उनके राइट्स प्रिजर्व करने के लिए डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन पहले भी निकाला है, वैसे अरिया को भी बचाया है, उसके लिए भी कोई सॉल्यूशन निकालना। प्लीज़ जब तक अरिया इंडिया नहीं जाएगी, मैं ऐसे प्रोटेस्ट करती रहूँगी, मैं एम्बेसी में बाहर आती रहूँगी, मैं करती रहूँगी। मैं आप सबसे भी विनती है, आप प्लीज़ आप भी कीजिए। एक माँ की आवाज़ नहीं पहुँचेगी, पूरे देश की माँ का रिक्वेस्ट अनदेखा नहीं किया जाएगा। हर माँ जानती है कि उसके बच्चे के लिए अच्छा क्या है। हम इवन ये भी नहीं बोल रहे बच्चे हमको दीजिए, ठीक है? हम अगर ऐसा बोलते हैं कि आप हमको दीजिए, तो भी हमको पता है कि वो बोलते ना, कायदा नहीं आटा घुट्टी में फंसाई, जिससे लॉज में घुस जाए। हमारा क्या रिक्वेस्ट है? हम ऐसा बोले बच्चे को पेरेंट्स को दीजिए? नहीं, हम वो जो भी प्रोसेस है हम करेंगे। हमारे तो ये, क्योंकि हमको पता है हम ऐसा बोलेंगे तो बच्ची इसमें भुगतेगी, बच्ची नरक की जिंदगी में जाएगी। हमको हमारी नहीं देखना है, हमको बच्चे की सेफ्टी देखना है। इसीलिए हम ये बोले कि अब हमको नहीं तो बच्ची को इंडिया में एक्सटेंडेड फैमिली, कोई इंडियन फैमिली को इंडिया में दिया जाए। बच्ची के लिए मांग रहे हैं, हमारे लिए नहीं। हम हमारे लिए, हमारे पास तो मांग ही नहीं रहे। आप सोचिए एक माँ के लिए कितना पेनफुल होगा ये बोलना कि आप बच्ची मुझे नहीं देंगे अभी, कोई बात नहीं, पर मेरी बच्ची को सेव करके उसको सेफ जगह पे रखो। क्योंकि हम समझे सिस्टम को, हम जी रहे हैं वो सिस्टम में, हम देख रहे हैं वो सिस्टम को, समझ रहे हैं। ऐसे हम अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। कुछ सिस्टम के कारण बाहर नहीं आ पा रहे और कुछ बाहर आ गए हैं। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमको चाहे पुलिस लेके जाए, कोई हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारी बेटी हमसे दूर हो चुकी है, तो हम हमारी बच्ची के लिए वो खड़े हैं कि हमारी बच्चे के लिए आवाज उठा रहे हैं। मेरी भारतीय जनता से, भारतीय सरकार से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज बच्ची के लिए आवाज उठाए, बच्ची को इंडिया भेजने के लिए मदद कीजिए, सरकार तक हमारी बात पहुंचाए। ऐसा अगर बच्ची दिवाली अपने घर, अपने देश, अपने नए भारत में मनाए,
मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। सॉरी, मैं ऑफिस के काम से घर पे हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इन लोग ने साइकोलॉजिकल असेसमेंट करने को बोला है, उसे 10 महीना लग रहा है, और वो 10 महीने से उन्होंने हमारे साथ खाली 10 घंटे बातें की है। कोई एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन को इतना समय कैसे लग सकता है? अगर उनको वही साइकोलॉजिकल असेसमेंट कंप्लीट करके अगर कुछ बातें करनी है, तो वो 10 घंटे बात करने के लिए उन्होंने 10 महीने लगाए। ये लोग जानबूझ के जो है वो समय खींचा जा रहा है, और वो समय के बाद अभी लोग ये चीज बोल रहे हैं कि लाइक अभी बच्चे ज्यादा करके जर्मन कल्चर में रहा है, इसके लिए उसको जर्मन कल्चर से इंडियन कल्चर में मूव करना उचित नहीं है। ये चीज तो बहुत गलत है। हमने तो समय नहीं लगाया, हमने तो नहीं बोला कि आप 10 घंटे मीटिंग के लिए 10 महीने लगाओ। तो इसे इतना समय क्यों लगाया जा रहा है? भारत को अकेले जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे ऑफिस का काम भी देखना पड़ता है। हमें इधर लॉयर की नहीं है, हमें हमारे बच्चे को जो यूनियन हमने रखा है वहाँ पे हमको पेमेंट करना है। तो ये सारी चीजें हमको मैनेज करते अकेली करनी पड़ रही है। मैं चाहता हूँ कि सब हमें सपोर्ट करे और भारत सरकार तक हमारी बात पहुँचाए। ये भावेश थे, अरिया के पापा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए लॉयर्स की फीस, बच्चे को रखा, उसकी फीस सब खर्चे से देखने के लिए उसको ऑफिस जाना पड़ता है ऑफिस के लिए, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आ सकता। पर वो खास इसीलिए ज्वाइन हुआ कि वो जहाँ भी है वहां से वो साथ में है। हम लोग, मैं और भावेश, अरिया के माता पिता, अरिया के लिए फाइट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के लिए हमारे भारत के देशवासी और सब हमारी मदद करेंगे और हमारी आवाज बनेंगे। हमारी नहीं, एक छोटी सी बच्ची अरिहा जो बोल नहीं सकती, उसकी आवाज बनेंगे। प्लीज, प्लीज बच्ची को वापस इंडिया लेके जाने की रिक्वेस्ट भारतीय सरकार तक हमारी पहुंचाई जाए। हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे, प्रदर्शन करें, आप भी करें, ताकि ये बात सब तक, सब जगह पे पहुंचे। आपका हर लोग का एक छोटा सा योगदान भी एक बच्चे को बाहर निकालने, नरक से बाहर निकालने के लिए बहुत काम आ सकता है। मैं इंडियन एम्बेसी के बाहर खड़ी हूँ और मैं खड़ी रहूंगी। हमारा ये आंदोलन जब तक अरिया इंडिया नहीं पहुंचेगी चलता रहेगा, चलता रहेगा। और हम आपसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी बच्ची को इंडिया पहुंचाने के लिए आपने भी आवाज, जहाँ पे भी है वहां से भी अपनी आवाज उठाइए। आप आप मोदी जी को ग्रीवियंस पे लिख सकते हैं कि बच्ची की कोई गलती नहीं है, बच्ची को लाइए प्लीज मोदी जी। हमारा एक के रिक्वेस्ट से शायद उनका बात वहां तक उन तक नहीं पहुंची होगी, पर अगर सब भारतीय जनता उनको पोस्ट करेगी, लेटर लिखेगी, मेल करेगी, ग्रीवियंस लिखेगी, तो मुझे पूरा यकीन है उन तक हमारी आवाज पहुंचेगी और वो तुरंत ही कोई एक्शन लेंगे। प्लीज, प्लीज help to save Ariha, help us to repatriate Ariha to India from Germany। अरिहा को ये नरक से बचाइए और अपने देश भारत लेके जाने में मदद कीजिए। धन्यवाद।